Hey, hi everyone. This is CA Sushil Kumar, and we will cover in this video another important regulation provided by SEBI, that is Substantial Acquisition of Shares and Takeover Regulation 2011. So let's start our discussion from the name of this regulation. See, SEBI Substantial Acquisition of Shares and Takeover Regulation. So there are two terms: substantial acquisition of shares and takeovers. See, takeover basically means purchase of one company by another. And in this regulation, the company which is purchasing, we will call that company as a acquirer company. Okay, and the company which is about to sell off, we will call him as टारगेट कंपनी. ओके, दैट मीन्स जो कंपनी खरीद रहा है ना, उसे हम लोग कहेंगे अक्वायरर कंपनी, और जो कंपनी बिकने वाली है उसे हम लोग कहेंगे टारगेट कंपनी. इफ ए परचेज बी कंपनी, देन ए इज अक्वायरर. वन सेकेंड, ए इज acquirer and B is the target company. So the basic meaning of term takeover is to purchase or acquire major or full control in another company. Now the next thing is substantial acquisition of shares. What does this means? See, substantial word means heavy volume. Okay, so when you acquire huge amount of shares in another company, that would be called as substantial acquisition of shares. That means you have acquired the share in substantial amount. Like suppose total number of shares of a company is 1 crore and you have acquired 80 lakh shares. Okay, so it would amount to the substantial acquisition of shares. That means you have acquired the majority stake, right? So now we are totally versed with these two terms. Like पहला है substantial acquisition of shares. That means when we acquire majority number of shares in a company, then we can say that yes, we have acquired the substantial amount of shares. Okay, and the another one is takeover. That means purchase of one company by another. Now the point to consider here is, ठीक है टेक ओवर हो रहा है, दैट मीन्स अ कंपनी इज परचेजिंग अनदर कंपनी, और सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, दैट मीन्स देर इज एक्विजिशन ऑफ मेजॉरिटी अमाउंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी. सो इसमें रेगुलेशन की क्या रिक्वायरमेंट पड़ गई? ओके, वाई सेबी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड रेगुलेशन ऑन दिस इफेक्ट. ओके, सो लेट्स डिस्कस ऑन द सेम दैट वाई रेगुलेशन इज बिंग रिक्वायर्ड फॉर दिस टू केस. ओके, देखिए अगर हम सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स की बात करते हैं ना, सो दिस मीन्स दैट व्हेन यू अक्वायर अ मेजॉरिटी स्टेक, लाइक मैंने यहाँ एग्जांपल दिया था दैट टोटल 1 करोड़ शेयर्स थे और उससे 80 लाख किसी ने अक्वायर कर लिया, सो इट वुड क्वालिफाई एज अ सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स. और आप जब मेजॉरिटी स्टेक परचेज करते हो ना, तो क्या होता है, कंट्रोल आपके पास आ जाता है, और दैट कंपनी ऑल्सो बिकम सब्सिडरी ऑफ योर्स. Also by acquiring this control, you become the promoter of the company. Yeah, correct. If you will see the definition of promoter given under section 2 subsection 69 of the Companies Act, it clearly says that if you have control over the affairs of company, you are promoter. Okay, see, पहले ऐसा होता था दैट जिसने कंपनी स्टार्ट किया वो ही प्रमोटर है, बट अब आप अगर डेफिनेशन देखोगे प्रमोटर का अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 ऑफ कंपनीज एक्ट, इट क्लियरली सेज दैट इफ यू हैव कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ कंपनी, यू आर प्रमोटर. ओके, सो नाउ वन कैन आस्क दैट व्हाट इज कंट्रोल. आई एम टेलिंग दैट आपको अगर कंट्रोल होगा अफेयर्स पे तो आप प्रमोटर है. तो ये कंट्रोल का जो डेफिनेशन है ना, दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 27. ओके, और ये कहता है कि यू कैन एक्वायर कंट्रोल इन द कंपनी बाय वे ऑफ होल्डिंग शेयर्स, बाय वे ऑफ हैविंग सम मैनेजमेंट राइट्स और वोटिंग एग्रीमेंट काइंड ऑफ थिंग. तो यहाँ पे आप शेयर्स एक्वायर कर रहे हो, राइट? सो बाय दिस वे यू कैन एक्वायर द कंट्रोल, एंड वंस यू हैव एक्वायर्ड द कंट्रोल, यू विल बिकम द promoter of the company. So it is clear from this discussion that if I acquire the shares of any company in substantial amount, I may become the promoter of the company. Okay, so अगर मैं promoter बन जाता हूँ किसी कंपनी का, तो उस कंपनी के टॉप मैनेजमेंट में कुछ चेंजेज आया, राइट? पहले कोई और प्रमोटर थे, अब मैं बन गया, आई हैव सम मैनेजमेंट राइट, आई हैव राइट टू अपॉइंट द डायरेक्टर्स एंड ऑल. अब इसके बाद ऐसा होता है ना कि जो पब्लिक शेयर होल्डर्स होते हैं, दैट इज रिटेल इन्वेस्टर, मीन्स जनरल पब्लिक जिन्होंने उस कंपनी का शेयर्स खरीदा हुआ है. ठीक है, लाइक आई एम गिविंग यू एग्जांपल दैट इफ़ यू हैव परचेज शेयर ऑफ सम टाटा ग्रुप, सपोज टाटा मोटर्स, आपने टाटा मोटर्स की शेयर परचेज करके रखी है, और आपने टॉप मैनेजमेंट में देखा है रतन टाटा काइंड ऑफ पर्सन. ओके, तो आपने उनको देखकर शेयर खरीदा है. अब कल को अगर जाके वो चेंज हो जाए, या कुछ टॉप मैनेजमेंट में अगर कुछ मेजर चेंजेज हो, तो फिर यू विल फील लाइक नहीं, मैंने तो उन पे ट्रस्ट करके शेयर लिया था, नाउ आई वांट टू सेल दिस शेयर्स बिकॉज देयर आर सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ चेंज इन द टॉप मैनेजमेंट. सो इस केस में क्या होने के चांसेस है कि आप अपने मन से एग्जिट करना चाहते हो बिकॉज यू आर नॉट लाइकिंग द टॉप मैनेजमेंट. तो ये सब्सटेंशियली शेयर को अक्वायर करके जो न्यू मैनेजमेंट आए हैं ना, वो क्या बोलेंगे दैट ठीक है, आपको अगर जाना है तो आप जाइए, आप अपना शेयर मुझे सेल कर दीजिए, बट उसके लिए वो आपको रीजनेबल दाम नहीं देंगे. ओके,
बिल्कुल आई कैन से दैट बिल्कुल स्क्रैप प्राइस पे आपसे वो शेयर खरीद लेंगे और बोलेंगे आपको जाना है तो आप जाइए. So for the purpose like when there is substantial acquisition of shares in a company and some public shareholders want to exit, okay, so they get a reasonable price for their shares. This regulation has been introduced. Fine. So this is the main purpose of this regulation that अगर कोई public shareholder if they want to exit तो उन्हें अपने शेयर के बिल्कुल fair price मिले और reasonable price मिले. Other than this, as far as takeover is concerned, like when a company have purchased another company, on that case also a consideration is to be given to all the stakeholders that किसी के भी interest harm तो नहीं हो रहे due to this acquisition, okay, or takeover. So all those points has been covered in this regulation. So this was the pre-discussion on this regulation. Let's move to the text of our ICSI study mat. Yeah. An overview of SEBI substantial acquisition of shares and takeover regulation 2011. The first thing is learning objective, and the important thing here mentioned is the purpose of SAST regulation, that is this substantial acquisition of shares and takeover को हम लोग शॉर्टकट में SAST बोलेंगे, ठीक है. The main purpose of SAST regulation is to prevent hostile takeovers and at the same time provide some more opportunity of exit to shareholders when there is change in control. That I told already that जब चेंज इन कंट्रोल होता है इन दैट केस प्रोवाइड सम मोर अपॉर्चुनिटी ऑफ एग्जिट टू द शेयर होल्डर. और एक टर्म था प्रिवेंट हॉस्टाइल टेक ओवर. हॉस्टाइल टेक ओवर बेसिकली मीन्स व्हेन अ कंपनी इज ट्राइंग टू अक्वायर अनदर कंपनी विदाउट इट्स कंसेंट. जब मीन्स आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी ऐसे कंपनी को अक्वायर करना चाह रहे हैं जो कि बिकना नहीं चाहता है, ओके, आप बस ज़बरदस्ती उस पर अपना कंट्रोल बनाना चाह रहे हैं. ऑल दोस थिंग वी विल कवर इन दिस चैप्टर, राइट. सो हॉस्टाइल टेक ओवर को प्रेजेंट करने के लिए एंड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग मोर अपॉर्चुनिटी ऑफ एग्जिट टू द शेयर होल्डर व्हेन देयर इज चेंज इन कंट्रोल. दिस इज द मेन पर्पस ऑफ दिस SAST regulation. After this also this regulation balance the conflicting objective and interest of various stakeholder in the context of substantial acquisition of shares in takeover of the listed company and also regulate and provide for fair and effective competition among acquirers desirous of taking over the same target company. कहता है कि जब एक्विजिशन या टेक ओवर होता है तो ये मैंने ऑलरेडी अभी किया था डिस्कस कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं ना उनके कंटेक्स्ट को लेके कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव हो या उनका कोई भी इंटरेस्ट अगर हार्म हो रहा है, ठीक है, सो दिस रेगुलेशन विल टेक केयर ऑफ. उसके बाद इट ऑल्सो रेगुलेट एंड प्रोवाइड फॉर फेयर एंड इफेक्टिव कॉम्पिटिशन अमॉन्ग अक्वायरर्स डिजायरस ऑफ टेकिंग ओवर द सेम टारगेट कंपनी. कहता है कि किसी एक कंपनी को अगर परचेज करने के लिए 4-5 कॉम्पिटिटर होना, दैट मीन्स 4-5 अक्वायरर है और एक टारगेट कंपनी है, तो उनके भी बीच में बिल्कुल फेयर एंड इफेक्टिव कॉम्पिटिशन होना चाहिए. दिस इज बीइंग इंश्योर्ड बाय दिस SAST regulation. That the thing related to bidding and all, this regulation ensure that there would be fair competition between the several acquirers. Now let's head to the first page and the first part is introduction. देखिए बहुत ही क्लियर वर्ड में लिखा हुआ है कि this regulation prescribes a systematic framework for acquisition of stake in a listed company. That means कभी भी किसी listed company में अगर stake का acquisition होगा तो उसका systematic framework क्या होगा, this is being specified by this regulation. After that by these laws the regulatory system ensures कि interest of shareholder of listed company are not compromised in case of an acquisition or takeover. अगर takeover हो रहा है या फिर acquisition हो रहा है तो किसी भी एंगल से interest of shareholder compromise नहीं होना चाहिए in listed companies, ठीक है. It also protect the interest of minority shareholders which is also fundamental attribute of corporate governance principle. See, it is one of the important element of a good corporate governance that interest of all the stakeholders is to be taken into account and minority shareholders are one of them, okay. So that's why it is written here that this regulation also protect the interest of minority shareholder which is fundamental attribute of a corporate governance principle. कहता है further this regulation ensures that public shareholder जो है listed company के उनको बिल्कुल fairly treat किया जाए and equitably in relation to substantial acquisition in या मीन्स इधर सब्सटेंशियल एक्विजिशन हो रहा हो या फिर टेक ओवर हो रहा है हो ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, देयर आर मेंटेनिंग स्टेबिलिटी इन द सिक्योरिटीज मार्केट. सी इफ द पब्लिक शेयरहोल्डर्स आर नॉट बीइंग ट्रीटेड फेयरली ना, सो इन दैट केस व्हाट कैन हैपन दैट इट मे क्रिएट एन अननेसेसरी पैनिक इन द मार्केट. बिकॉज ऐसा कुछ न्यूज़ अगर बाहर आ गया दैट मैनेजमेंट इज़ नॉट टेकिंग केयर ऑफ द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स होंगे वो बहुत ही जल्दी जल्दी अपना शेयर सेल करने लगेंगे. इट मे क्रिएट अ ह्यूज सेल ऑफ इन द मार्केट. सो इन दैट केस उस कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो काफ़ी जल्दी से फ्लक्चुएट करेंगे, राइट. सो टेकिंग केयर ऑफ द माइनॉरिटी शेयर होल्डर और वी कैन से द पब्लिक शेयर होल्डर ऑल्सो इंश्योर स्टेबिलिटी इन द सिक्योरिटीज मार्केट,
ओके नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेक ओवर रेगुलेशन इज टू इंश्योर दैट पब्लिक शेयर होल्डर जो है कंपनी के, उनको मैंडेटरली ऑफर मिले एग्जिट अपॉर्चुनिटी करने का, ठीक है, एंड एट द बेस्ट पॉसिबल टर्म्स इन केस ऑफ अ सब्सटेंशियल एक्विजिशन और चेंज इन कंट्रोल ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। लाइक मैंने आपको बोला था ना कि वो उनको स्क्रैप के दाम पे बोलेंगे अपना शेयर बेच के चले जाओ, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो एग्जिट करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा ना, ये बिल्कुल बेस्ट पॉसिबल टर्म्स पे मिलेगा इन केस ऑफ सब्सटेंशियल एक्विजिशन और चेंज इन कंट्रोल ऑफ अ listed company. So this was introduction part, or I can say the basic or main purpose of this regulation. Coming to the background, the first two para pertains to the history of this regulation, that it started in 1990 and then notified in November 1994. ये दोनों पैरा आप लोग पढ़ लेना, ओके, इट्स फ्रॉम हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू ओनली। और ये लास्ट पैरा आप अगर देखोगे तो सेम बात लिखा हुआ है, इसका एम है टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन सिक्योरिटी ऑफ लिस्टेड कंपनी प्रोवाइडिंग अमंगस्ट अदर एक अपॉर्चुनिटी ऑफ पब्लिक शेयर होल्डर टू एग्जिट। देखा हम लोगों ने जब सब्सटेंशियल एक्विजिशन हो रहा है और वोटिंग राइट का या फिर कंट्रोल एक्सरसाइज हो रहा है, ठीक है। फिर कहता है SAST रिक्वायर्स एन एक्वायरर टू मेक एन ऑफर टू शेयर होल्डर ऑफ द टारगेट कंपनी ऑन एक्वायरिंग शेयर्स एक्सीडिंग स्टिपुलेटेड थ्रेशोल्ड्स। कहता है कि ये जो सब्सटेंशियल एक्विजिशन हो रहा है ना, ये जब एक लिमिट से क्रॉस करता है ना, इन दैट केस एक्वायरर नीड टू गिव एग्जिट अपॉर्चुनिटी टू द पब्लिक शेयर होल्डर। इट ऑल्सो कंटेन प्रोविजन रिलेटिंग टू द ओपन ऑफर साइज एंड प्राइस। दैट मीन्स वो जो ऑफर किया जाएगा पब्लिक शेयर होल्डर को कि हम लोग सब्सटेंशियली एक्वायर कर रहे हैं, अब हम आपको ऑफर करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एग्जिट, तो उसका साइज़ क्या होना चाहिए, प्राइस क्या होना चाहिए, टाइम बाउंड प्रोसेस फॉर मेकिंग एन ओपन ऑफर। दैट मीन्स आपको कितने टाइम के अंदर ओपन ऑफर करना है एंड ऑल। एग्जाम्पशन फ्रॉम मेकिंग एन ओपन ऑफर, दैट मीन्स किस केस में आपको इस ओपन ऑफर पब्लिक शेयर होल्डर को देने से एग्जाम्पशन है। The next heading pertains to a small brief to whatever we are going to cover in this chapter. That is, we will cover the definition contained in Regulation 1-2, then substantial acquisition of shares, voting right, control and threshold, limit for open offer. What is the process of open offer, obligation of a target company, acquirer or manager, disclosure of shareholding and control, and then power of SEBI, Regulation 31 to 35. Let's proceed to the next page, and the first सेक्शन हियर इज इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। सो एक्वायरर, मैंने आपको डिस्कशन करते टाइम बताया था दैट जो कंपनी एक्वायर कर रही है, जो कंपनी परचेज कर रही है, दैट वुड बी एक्वायरर, ठीक है। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं, एक्वायरर मीन्स एनी पर्सन हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली acquires or agree to acquire, whether खुद से that means by himself or through person acting in concert with him. ये person acting in concert is also डिफाइंड फर्दर, बट आप अभी ये समझिए कि ग्रुप ऑफ पर्सन को हम लोग कहते हैं पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट। कहने का मतलब कि या तो वो खुद से या तो एक ग्रुप के साथ शेयर या वोटिंग राइट को अक्वायर कर रहा है या फिर कंट्रोल ओवर अ टारगेट कंपनी। सी एक्वायरर मीन्स एनी पर्सन जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक्वायर करे या अग्री टू एक्वायर करे शेयर्स और वोटिंग राइट या कंट्रोल ओवर अ टारगेट कंपनी, ठीक है, वेदर बाय हिमसेल्फ और विथ अ पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट। The next is the simple one. Acquisition means directly or indirectly acquiring or agreeing to acquire shares or voting right or control over a target company. That means जब directly या indirectly acquire किया जाए shares या voting right या control in a target company, that is called acquisition. Next, the definition of control is too important और इसको हम लोग पार्ट में डिवाइड करके याद करेंगे, ठीक है। See, control includes the right to appoint majority of the directors. Means अगर आपके पास right है कि आप मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हो इन द कंपनी, देन यू आर सेट टू बी एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द कंपनी, ठीक है। तो पहला तो ये है कि आपको राइट होना चाहिए टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर। उसके बाद कहता है कंट्रोल द मैनेजमेंट, या आप मैनेजमेंट को कंट्रोल करें। उसके बाद कहता है या पॉलिसी डिसीजंस एक्सरसाइजेबल बाय अ पर्सन और पर्सन एक्टिंग इंडिविजुअली और इन कंसर्ट। पॉलिसी जो मीन्स वॉट एवर द पॉलिसी डिसीजंस देयर इन अ कंपनी, जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो आप ले रहे हो एक्सरसाइजेबल बाय पर्सन या फिर मीन्स खुद से या फिर और इन अ कंसर्ट। कंसर्ट मीन्स अगेन यू अंडरस्टैंड एज अ ग्रुप ऑफ पर्सन, ओके। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या तो आप डायरेक्टली उस पॉलिसी मीन्स पॉलिसी डिसीजन में कंट्रीब्यूट कर रहे हो या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली, इंक्लूडिंग बाय वर्च्यू ऑफ देयर शेयर होल्डिंग और मैनेजमेंट राइट और शेयर होल्डर एग्रीमेंट और वोटिंग एग्रीमेंट और इन एनी अदर मैनर। मीन्स ये जो आप पॉलिसी डिसीजन को एक्सरसाइज कर पा रहे हो ना, ये मीन्स ड्यू टू द रीज़न ऑफ योर शेयर होल्डिंग, या आपके पास कोई मैनेजमेंट राइट है या फिर कोई शेयर होल्डर एग्रीमेंट है या कोई वोटिंग एग्रीमेंट है।
Now here one thing to focus, that if you will see the definition of control under section 2 subsection 27 of Companies Act ना, तो वहाँ भी कुछ ऐसा ही लैंग्वेज यूज़ किया है, दैट यू कैन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ कंपनी बाय द वर्च्यू ऑफ शेयर होल्डिंग, मैनेजमेंट राइट्स, शेयर होल्डर एग्रीमेंट और voting agreement. So this is something similar to the definition given in this regulation and as given in the Companies Act. So इस definition में हम लोगों ने क्या देखा, let's see it again, that control का मतलब होता है कि right to appoint majority of director और control the management और policy decision exercisable by a person. That means आप policy decisions ले रहे हो कंपनी का या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली बाय द वर्च्यू ऑफ, दैट मीन्स ड्यू टू द रीजन ऑफ योर शेयर होल्डिंग, या तो आपके पास मैनेजमेंट राइट है, शेयर होल्डर एग्रीमेंट और वोटिंग एग्रीमेंट, और इन एनी अदर मैनर. एंड द नेक्स्ट लाइन इज अ डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ अ टारगेट कंपनी शैल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी इन कंट्रोल ओवर सच टारगेट कंपनी मियरली बाय वर्च्यू ऑफ होल्डिंग सच पोजीशन. कोई डायरेक्टर या कोई ऑफिसर है कंपनी का, तो ड्यू टू दिस रीजन दैट ही इज़ अ डायरेक्टर और वो कुछ डिसीजन ले रहा है, वी कांट से दैट ही इज़ इन द कंट्रोल ऑफ द कंपनी, because that control should only get exercised by the virtue of shareholding, management rights, shareholder agreement or voting agreement. Okay. The next term defined is enterprise value, and it is a simple equation that means market cap of a company plus debt, minority interest, preferred shares minus total cash and cash equivalents. See, enterprise value means this plus this plus this plus this minus total cash and cash equivalent. This simply you need to remember. Okay, that what is the enterprise value. Now coming to the next, frequently traded shares. बहुत ध्यान से देखना है इसको, ठीक है. See, frequently traded shares means shares of a target company. Okay, shares of a target company in which the traded turnover on any stock exchange during the 12 calendar month preceding the calendar month in which the public announcement is required to be made under this regulation. देखिए, ये जो पब्लिक अनाउंसमेंट होता है ना, ये ऑफर देने के लिए ही होता है. दैट मीन्स पब्लिक शेयर होल्डर को जब ऑफर दिया जाता है दैट वी आर प्रोवाइडिंग यू द एग्जिट अपॉर्चुनिटी, तो उसे ही कहते हैं पब्लिक अनाउंसमेंट. सो हियर इट इज़ टेलिंग दैट पब्लिक अनाउंसमेंट जिस कैलेंडर मंथ में हुआ ना, उससे 12 कैलेंडर मंथ प्रीसीडिंग, ओके, उससे 12 कैलेंडर मंथ पीछे देखना है कि ट्रेडेड टर्नओवर जो है वो एटलीस्ट 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ सच क्लास ऑफ द टारगेट कंपनी. जिस क्लास ऑफ शेयर्स का हम लोग देख रहे होंगे ना, उस क्लास के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स का एटलीस्ट 10% होना चाहिए ट्रेडेड टर्नओवर in the 12 calendar month preceding the calendar month in which the public announcement is required to be made. Once see this definition again. Okay, see, frequently traded shares means shares of target company जिसका traded turnover at least 10% of total number of shares of such class of target company when during the 12 calendar month preceding the month in which public announcement is required to be made. Okay. सी, उसके बाद कहता है वेयर द शेयर कैपिटल ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर्स ऑफ अ टारगेट कंपनी इज नॉट आइडेंटिकल थ्रू आउट सच पीरियड, तो द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ टोटल शेयर ऑफ सच क्लास ऑफ टारगेट कंपनी शैल रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ शेयर. सी, दिस बेसिकली मीन टू से दैट इफ शेयर कैपिटल ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ टारगेट कंपनी इज नॉट आइडेंटिकल, दैट मीन्स कीप चेंजिंग, लाइक कोई बायबैक हो रहा है या फिर कोई फर्दर इशू ऑफ शेयर्स हो रहा है, सो इन दैट केस वी हैव टू कंसिडर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर. इफ आई विल गिव एग्जांपल, इट वुड बी लाइक अगर 500 शेयर इशू हुआ ना, एडिशनल 500 शेयर्स इज बिंग इशूड इन मिड ऑफ ईयर, दैट मीन्स 6 महीने पे हुआ है, तो उस 500 शेयर्स को वी विल कंसिडर एज 250 शेयर्स, 500 इंटू 6/12, दैट वुड बी कॉल वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर. द नेक्स्ट डेफिनेशन इज अबाउट मैक्सिमम परमिसिबल नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग, मीन्स नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग की कितनी मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है. सी, दिस मीन्स सच परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग इन द टारगेट कंपनी एक्सक्लूडिंग द मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग एज पर SCRA मीन्स सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स. कहता है कि देखिए ये बहुत ही फनी सा है. मैक्सिमम नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग का मतलब होगा दैट परसेंटेज शेयर होल्डिंग आफ्टर एक्सक्लूडिंग द मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग, मीन्स आप अगर टोटल से मिनिमम हटा दो तो फिर वो मैक्सिमम बचेगा, राइट. नाउ कम टू द ऑफर पीरियड. We'll read this definition in two parts, that from where the offer period start and where it end. Okay, और ये ऑफर वही है जो हम लोग पब्लिक शेयर होल्डर को देते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एग्जिट इन केस ऑफ सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स और कंट्रोल एंड ऑल. ठीक है, तो उस कंटेक्स्ट में ही इसको पढ़ना है. ऑफर पीरियड मतलब पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट टू अक्वायर शेयर्स, वोटिंग राइट, कंट्रोल ओवर अ टारगेट कंपनी और द डेट ऑफ द पब्लिक अनाउंसमेंट. ठीक है, हम कहते हैं कि ये जो हम एग्रीमेंट में एंटर कर रहे हैं टू अक्वायर शेयर्स, वोटिंग राइट और कंट्रोल ओवर टारगेट कंपनी, जिसके बाद मुझे पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा, वो वाला डेट या तो डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट.
From this, the offer period will start and it will end at the date on which payment of consideration to shareholder who have accepted the open offer is made. उस डेट को जब कि उस शेयर होल्डर को जिसने ओपन ऑफर एक्सेप्ट किया होगा उनको जब कंसिडरेशन दे दिया जाए, दैट डेट और द डेट ऑन विच ओपन ऑफर इज विदड्रॉन. सो बेसिकली ऑफर पीरियड कैन स्टार्ट एट 2 डेट. द फर्स्ट वन इज या तो डेट ऑफ एंटरिंग इनटू अग्रीमेंट पे स्टार्ट हो जाएगा या तो डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट पे. ओके और ये एंड कहाँ पे होगा? उस डेट को जब कंसिडरेशन पे किया होगा टू द शेयर होल्डर और डेट ऑन विच द ओपन ऑफर इज विदड्रॉन. द नेक्स्ट डेफिनेशन इज पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट. और जब ये टर्म पहले डेफिनेशन में आया था तो आई टोल्ड यू टू कंसिडर इट एज अ ग्रुप ऑफ पर्सन. ओके नाउ सी इट्स डेफिनेशन. इट मीन्स अ persons who with a common objective or purpose of acquisition of shares or voting right in or exercising control over a target company pursuant to an agreement or understanding, formal or informal, cooperate for acquisition of shares or voting right or exercise control over the target company. देखिए कहने का मतलब है ना कि एक सेकेंड कि कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन है जिनका कॉमन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, और वो अक्वायर करना चाहते हैं शेयर या वोटिंग राइट या एक्सरसाइज करना चाहते हैं कंट्रोल ओवर अ टारगेट कंपनी, और उन लोगों के बीच में अग्रीमेंट है और या तो अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, मीन्स फॉर्मल और इनफॉर्मल अग्रीमेंट उन लोगों के बीच में दैट वी विल कलेक्टिवली अक्वायर द शेयर्स और एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द टारगेट कंपनी. सो दिस वॉज द जनरल definition, and the point 2 provides for some specific pointers that get covered under the person acting in concert. See, without prejudice to the generality of the foregoing, the person falling within the following category deemed to be person acting in concert with other person within the same category unless the contrary is established. मतलब जब तक हमें कुछ contrary ऐसा फील ना हो, मीन्स कुछ अपोजिट फील ना हो, ये जितने भी स्पेसिफाई किए हुए हैं ना, ये पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट होंगे. देखिए एक कंपनी, उसका होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी और एनी कंपनी अंडर द सेम मैनेजमेंट और कंट्रोल, उनको हम लोग एक साथ पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट मान सकते हैं. अ कंपनी, इट्स डायरेक्टर, एनी पर्सन इंटरेस्टेड विद द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, मीन्स ऐसे पर्सन जिनको मैनेजमेंट का काम इंटरेस्ट किया गया हो. डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज रेफर टू इन आइटम 1 and 2 ऑफ दिस सब क्लॉज एंड एसोसिएट ऑफ सच डायरेक्टर्स. कहता है कि इस दोनों, ये जो 1 और 2 है ना, वन सेकेंड, ये 1 ये 2, इन दोनों के डायरेक्टर्स और एसोसिएट्स ऑफ सच डायरेक्टर्स, उन दोनों को मानेंगे पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट. प्रमोटर्स, मेंबर ऑफ द प्रोमोटर ग्रुप, इमीडिएट रिलेटिव्स, म्यूचुअल फंड, उसके स्पॉन्सर, उसके ट्रस्टी कंपनी एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इन सबको मानेंगे पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट. एंड देन कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, उनके मैनेजमेंट कंपनी, उनके ट्रस्टी एंड उनके ट्रस्टी कंपनी. सेम वे वेंचर कैपिटल फंड, उसके स्पॉन्सर, ट्रस्टी कंपनी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी. एंड देन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, स्पॉन्सर, ट्रस्टी सेम है. मर्चेंट बैंकर, क्लाइंट who is an acquirer, portfolio manager and its client who is an acquirer. Okay, after that acquirer के bank, financial advisor and stock broker, or of any company which is a holding company or subsidiary of the acquirer and where the acquirer is an individual or the immediate relative of such individual. अगर acquirer individual है तो उनके relative जो होंगे उन्हें हम लोग person acting in concert मानेंगे. अगर company है तो उसके holding company और subsidiary company. However, this shall not apply to a bank whose sole role is to provide normal commercial banking service or activity in relation to an open offer under this regulation. कहता है कि ये जो है it will not apply to a bank जिनका काम ही है provide normal banking commercial services. Okay. The last pointer is an investment company या fund and any person who has an interest in such investment company or fund as a shareholder या unit holder having not less than 10% of the paid up capital of the investment company or unit capital of fund. कहता है कि investment company या तो fund और एक इंसान को तब मानेंगे कि वो पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट है अगर उसका इंटरेस्ट होगा इन्वेस्टमेंट कंपनी में बाय वे ऑफ शेयर होल्डर और यूनिट होल्डर एंड नॉट लेस देन 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल या यूनिट वो होल्ड कर रहा होगा, ठीक है. एंड एनी अदर इन्वेस्टमेंट कंपनी और फंड इन विद सच पर्सन और हिज एसोसिएट होल्ड नॉट लेस देन 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट कंपनी और यूनिट कैपिटल ऑफ दैट फंड. कहता है कि वो पर्सन या कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी या कोई फंड जिसमें कि वो पर्सन और उसका एसोसिएट दोनों मिला के नॉट लेस देन 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल होल्ड कर रहा हो. कहता है हाउएवर दिस शैल नॉट अप्लीकेबल टू होल्डिंग ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड विद सेबी. जो म्यूचुअल फंड सेबी में रजिस्टर्ड है उनका यूनिट को होल्ड करने में दिस पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट का कॉन्सेप्ट नहीं एप्लीकेबल होना है. सपोज यू आर होल्डिंग फ्यू यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड एंड दैट अमाउंट टू मोर देन 10% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल. सो इन दैट केस आपको और उस म्यूचुअल फंड को पर्सन एक्टिंग इन अ कंसर्ट नहीं माना जाएगा. ओके,
Now see the next definition. Target company under this regulation means a company and include a body corporate or corporation established under central legislation, state or provincial legislation whose shares are listed on a stock exchange. That means टारगेट कंपनी वो कंपनी ही होंगे जिसका शेयर लिस्टेड हो स्टॉक एक्सचेंज पे, और वो कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो या तो कोई ऐसे कॉर्पोरेशन जो कि इन सब लेजिस्लेशन के अंडर स्टैब्लिश किए गए हो. ओके, द नेक्स्ट डेफिनेशन गिवन हियर इज ऑफ टेंडरिंग पीरियड, and this means the period within which shareholder may tender their shares in acceptance of an open offer to acquire shares made under this regulation. We already discussed that under this regulation, to all the public shareholder an exit opportunity is being given by way of open offer. मीन्स जब भी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स होते हैं ना, तो पब्लिक शेयर होल्डर्स को ये अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कि इफ़ यू वांट टू सेल योर शेयर्स एंड एग्जिट दिस कंपनी तो यू आर वेरी वेलकम. ठीक है, और उसके लिए उनको ओपन ऑफर किया जाता है. सो टेंडरिंग पीरियड मीन्स period within which shareholder accept the offer and tender their shares. Tender their shares means उनको means a kind of submitting the share that yes I want to sell my share. तो shareholder उस open offer को accept कर ले और अपना share को tender कर दे. That period is only called tendering period, right? Now the next definition given here is volume weighted average market price. इसे देखते हैं, इसमें थोड़ा मैथ्स की implication है बट वो easy है. ठीक है, देखिए वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड द प्राइस ऑफ इच इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. सिंपली मीन दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर सी मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर विथ इट्स प्राइस एंड देन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. यहाँ एग्जाम्पल दिया है कि अगर नंबर ऑफ शेयर एक्स है और उसका मार्केट प्राइस वाई है, सो x1 इंटू वाई वन, दैट मीन्स नंबर ऑफ शेयर इंटू प्राइस उसका x2 इंटू y2. ओके, मीन्स अगर कोई x2 शेयर है तो उसका प्राइस y2. तो दिस प्रोडक्ट को आपको ऐड करना है एंड देन यू हैव टू डिवाइड विथ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, दैट मीन्स x1 x2 प्लस x3. फाइन. नाउ द नेक्स्ट इज वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स. ये भी आप लोगों को ऑलरेडी पता है, मैंने एक बार किया है डिस्कस दैट वेटेड एवरेज टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मीन्स नंबर ऑफ शेयर्स एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड एडजस्टेड फॉर शेयर कैंसल्ड, बॉट बैक और इशूड ड्यूरिंग द अफोरशेड पीरियड. मीन्स ओपनिंग बैलेंस प्लस कोई न्यू इशू हुआ है माइनस कोई अगर बायबैक काइंड ऑफ थिंग हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय द टाइम वेटिंग फैक्टर. टाइम वेटिंग फैक्टर मीन्स सपोज 500 एडिशनल शेयर्स इशू हुए इन द मिड ऑफ ईयर, दैट मीन्स 6 महीने बाद. तो उस 500 शेयर्स को हम लोग मानेंगे 250 शेयर्स. हाउ? 500 इंटू 6 मंथ्स अपॉन 12. ठीक है, तो वो 500 शेयर्स इज इक्वल टू 250 वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स. इसी को हम लोग कहते हैं टाइम फैक्टर. अगर कोई मीन्स इन द जब ईयर का 3 मंथ्स पेंडिंग है उस टाइम अगर इशू हुआ है, so in that case we will multiply it by 3 by 12. The next one is volume weighted average price and it is the last definition of this regulation. It means product of number of equity share, bout and price of each such equity share divided by total number of. So easy. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जितना आपने खरीदा है इनटू उसके प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जितना आपने परचेज किया है. ठीक है. The next thing is applicability of this regulation, very important. It says that these regulations shall apply to direct and indirect acquisition of shares or voting rights in or control over target company. और आप अगर target company के definition देखोगे ना, we have seen it here. Target company means a company and includes a body corporate or corporation established under this legislation whose shares are listed on stock exchange. या इन शॉर्ट इफ आई से टारगेट कंपनी मीन्स एक ऐसी कंपनी जो कि लिस्टेड हो, राइट. सो आपको नहीं लगता है कि इसकी एप्लीकेबिलिटी को जब हम पढ़ेंगे यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये रेगुलेशन अप्लाई होगा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्विजिशन ऑफ शेयर्स या वोटिंग राइट या कंट्रोल ओवर अ टारगेट कंपनी. मीन्स आप अगर शेयर एक्वायर कर रहे हो या वोटिंग राइट एक्वायर कर रहे हो या कंट्रोल एक्वायर कर रहे हो टारगेट कंपनी के ऊपर, और टारगेट कंपनी वो कंपनी है जो कि लिस्टेड हो. दैट मीन्स ऐसी कंपनी जो लिस्टेड नहीं है और उसका अगर सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स हो रहा है तो ये रेगुलेशन अप्लाई नहीं होगा. आई रिपीट, ऐसी कंपनी जो लिस्टेड नहीं है और उसकी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, वोटिंग राइट्स, कंट्रोल कुछ भी हो रहा हो, दिस रेगुलेशन विल नॉट अप्लाई बिकॉज दिस रेगुलेशन विल अप्लाई ओनली इन द केस वेयर acquisition of shares or voting right or control is being done of a target company. ठीक है, और टारगेट कंपनी का डेफिनेशन क्लियर करता है, टारगेट कंपनी का डेफिनेशन क्लियर करता है दैट द कॉर्पोरेशन शुड बी लिस्टेड कंपनी. सो दिस रेगुलेशन विल अप्लाई ओनली ऑन द कंपनी विच इज लिस्टेड और उस कंपनी में सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स हो रहा हो. ठीक है, अब अगर कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स ले रिसेंट
टेक ओवर्स की, ठीक है। फेसबुक ने इंस्टाग्राम को परचेज किया, बोथ मीन्स नन ऑफ द कंपनी आर लिस्टेड इन द इंडिया। वैसे हम लोगों को सिर्फ टारगेट कंपनी को देखना है। अगर फेसबुक ने इंस्टाग्राम को परचेज किया तो इंस्टाग्राम इज अ टारगेट कंपनी, इट इज़ नॉट लिस्टेड इन इंडिया, this regulation will not applicable. Okay. Similarly, if I will give more example, it would be like Walmart acquired Flipkart. Walmart ने Flipkart को purchase कर लिया. Again, Flipkart is not listed in India. This regulation will not applicable. I want to give one more example. I think ये 17th अप्रैल को मैंने ये न्यूज़ देखा था। सी आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, TVS स्नैप्स यूके आइकॉनिक मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन फॉर ₹153.2 करोड़। ये जो अपना TVS है ना इंडिया का, इसने यूके के मतलब इंग्लैंड के नॉर्टन मोटरसाइकिल्स को परचेज कर लिया। ओके, और ये जो परचेज हुई है, आप अगर यहाँ देखोगे फर्दर तो सेकंड पैरा में आप देखना दैट द चेन्नई बेस्ड कंपनी विल पे £16 million बाय एक्वायरिंग सर्टेन असेट ऑफ नॉर्टन मोटरसाइकिल्स यूनाइटेड किंगडम थ्रू वन ऑफ इट्स ओवरसीज सब्सिडरी। दैट मीन्स TVS कंपनी के एक ओवरसीज सब्सिडरी ने इसका एक्चुअली में परचेज किया है, राइट। सो इन दिस केस जो अक्वायरर है, दैट मीन्स TVS की ओवरसीज सब्सिडरी, इट इज ऑल्सो नॉट लिस्टेड इन इंडिया एंड एनी हाउ यू हैव टू फोकस ऑन द टारगेट कंपनी, एंड इन दिस केस टारगेट कंपनी इज नॉर्टन मोटरसाइकिल फ्रॉम इंग्लैंड एंड इट इज नॉट लिस्टेड इन इंडिया, सो दिस रेगुलेशन विल नॉट एप्लीकेबल। ओके, सो लेट्स अब एक ये भी एग्जाम्पल देते हैं जहाँ पे एप्लीकेबल है। एक पुराना एग्जाम्पल है, व्हेन डाइची सेंक्यो जापानीज कंपनी एक्वायर्ड रैनबैक्सी, ठीक है। तो रैनबैक्सी लिस्टेड थी इंडिया में, तो उस केस में दिस रेगुलेशन विल एप्लीकेबल, ठीक है। नो अगला जो लाइन है ये कहता है दीज रेगुलेशन शैल नॉट अप्लाई। देखिए कहाँ पे ये रेगुलेशन अप्लाई नहीं होगा, टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्विजिशन ऑफ शेयर्स और वोटिंग राइट्स in or control over a company listed without making a public issue on the institutional trading platform of a recognized stock exchange। अब कहता है कि उस कंपनी के केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा जो कंपनी लिस्टेड होगी विदाउट मेकिंग पब्लिक इशू। ऐसी कौन सा कंपनी होती है जो कि लिस्टेड भी है और उसने पब्लिक इशू भी नहीं लाया? सी देयर इज समथिंग कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज। वी कैन से इट्स अ बीटा वर्सन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, और लाइक SME प्लेटफॉर्म होता है ना जिसमें सिर्फ MSME कंपनीज ही करा सकते हैं लिस्टिंग, तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वैसे ही होते हैं। दैट एक कंपनी जो कि मेन बोर्ड मीन्स दिस BSE सेंसेक्स और निफ्टी NSE, ओके, ये मेन बोर्ड में नहीं लिस्ट होके दे जस्ट इनरोल देयर शेयर्स ऑन द इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। सो उस केस में पब्लिक इशू लाने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है और भी बहुत सारे रिलैक्सेशन मिलते हैं। तो जो कोई ऐसी कंपनी होगी जो कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे है और उसमें सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स हो रहा है ना, सो दिस रेगुलेशन विल नॉट एप्लीकेबल। फाइन, सिर्फ मेन बोर्ड वाले जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड कंपनी है, इन दैट केस ओनली दिस रेगुलेशन विल बी एप्लीकेबल। नाउ लेट्स मूव टू द ट्रिगर पॉइंट फॉर मेकिंग एन ओपन ऑफर बाय एन एक्वायरर। जब कोई एक्वायरर एक्वायर कर रहा है तो ट्रिगर पॉइंट क्या होगा, मीन्स कब उसकी लायबिलिटी बनेगी टू गिव द ओपन ऑफर, किसको? पब्लिक शेयर होल्डर को, फॉर द पर्पज ऑफ एग्जिटिंग फ्रॉम द कंपनी। देखिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट है 25% शेयर्स या वोटिंग राइट। कहता है एक एक्वायरर अलॉन्ग विद PAC का डेफिनेशन वी हैव ऑलरेडी सीन, ओके। तो एक एक्वायरर along with PAC who intend to acquire shares which along with his existing shareholding entitle him to exercise 25% or more voting rights can acquire such additional shares only after making public announcement to acquire minimum 26% shares of the target company from the shareholders through an open offer। अब इसका मतलब क्या है? This simply means that if an acquirer along with PAC want to acquire shares in the company एंड आफ्टर अक्वायरिंग दैट एडिशनल शेयर्स, जो शेयर्स वो ऑलरेडी होल्ड करते हो ना, उस दोनों को मिला के अगर उसके पास उस कंपनी का 25% या उससे ज़्यादा वोटिंग राइट आ जाए ना, तो वो शेयर को तभी अक्वायर कर सकते हैं जब वो पब्लिक अनाउंसमेंट किए हो, ठीक है। अब पब्लिक अनाउंसमेंट किस बात की होती है? पब्लिक अनाउंसमेंट होती है कि आई विल अक्वायर मिनिमम 26% ऑफ शेयर ऑफ द टारगेट कंपनी फ्रॉम द शेयर होल्डर्स थ्रू एन ओपन ऑफर। ओपन ऑफर में जितने शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट करेंगे ना, I will purchase maximum 26% of the shares of the target company। इस बात का उनको पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ता है, ठीक है। कब करना पड़ता है? जब वो जितना शेयर एक्वायर कर रहे हैं along with their existing shareholding entitles him to exercise 25% or more voting rights in the company, ठीक है, I mean in the target company। Now one example is given here, see कहता है कि ए के पास पहले से होल्डिंग थी 23%, उसने फर्दर 3% होल्डिंग कर ली। अभी ये क्रिपिंग एक्विजिशन वी विल सी हियर, ठीक है।
मीन्स 23 थी, अब उसने 3 एक्वायर कर ली, पोस्ट होल्डिंग कितने हो गई 26%। नाउ एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेबी टेक ओवर रेगुलेशन, ओपन ऑफर की ऑब्लिगेशन उस पर आ जाएगी। ओके और पहले से अगर थे 7%, 2% फर्दर एक्वायर कर ली तो इट इज़ 9%, इट इज़ वेल विद इन द लिमिट ऑफ 25%, राइट। सो इन दैट केस देर इज़ नो ऑब्लिगेशन फॉर द ओपन ऑफर। अब देखते हैं ये क्रीपिंग एक्विजिशन लिमिट क्या होता है। इट सेज दैट एन acquirer who hold 25% or more but less than the maximum permissible non-public shareholding, I think ये 75% है, okay, of the target company can acquire such additional shares as would entitle him to exercise more than 5% of the voting rights, ठीक है, in any financial year, only after making a public announcement to acquire minimum 26% share of target company from the shareholder through an open offer। देखिए पब्लिक अनाउंसमेंट करने की रिक्वायरमेंट क्रीपिंग एक्विजिशन लिमिट में भी सेम दिया हुआ है, बट कंडीशन क्या है ये ऑफर करने का, दैट अगर आपके पास 25% या उससे ज़्यादा शेयर होल्डिंग है, ठीक है, बट मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट से कम है। सो इन दैट केस आप उतना एडिशनल शेयर एक्वायर कर सकते हैं जो कि आपको इंटाइटल करे टू एक्सरसाइज मोर देन 5% ऑफ वोटिंग राइट इन एनी फाइनेंशियल ईयर। सो इन दैट केस यू कैन एक्वायर दैट 5% और मोर ऑफ द वोटिंग राइट्स ओनली आफ्टर गिविंग दिस public announcement, and the requirement is same, that I will acquire minimum 26% of share of target company from the shareholders through an open offer। okay, means जो shareholders open offer में participate करेंगे उनसे purchase करेंगे, and that would be minimum 26% of the share of target company। the next is open offer। open offer C कहता है कि SEBI takeover regulation 2011 provides certain trigger event wherein acquirer is required to give open offer to shareholder of the target company to provide them exit opportunity। Same we have seen here already, this 25% वाला limit as a trigger point for making an open offer by an acquirer। Further we will see it in more detail। okay, see it is given here that open offer is to be made and that would be mandatory offer and voluntary offer। means कभी ऐसा भी सीन होता है कि अगर ये जो acquirer है वो अपने मन से भी ऑफर कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एग्जिट अपॉर्चुनिटी टू द पब्लिक शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो देखिए मैंडेटरी ऑफर वो 3 केस में होता है। फर्स्ट वन इज एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एज पर रेगुलेशन 3, देन कंट्रोल रेगुलेशन 4 एंड देन इनडायरेक्ट एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ कंट्रोल। ये शेयर्स और कंट्रोल होगा शायद यहाँ पे, ठीक है, शेयर्स और कंट्रोल मीन्स इनडायरेक्ट एक्विजिशन ऑफ या तो शेयर्स या तो कंट्रोल, एंड इट इज गवर्न बाय रेगुलेशन 5। सो फर्स्ट लेट्स सी द मैंडेटरी ओपन ऑफर एंड इट सेज that this regulation provides a threshold for mandatory open offer, means एक threshold दिया हुआ है, वो टच करेगा या क्रॉस होगा तो आपको mandatory open offer करना है। This regulation provides that whenever an acquirer acquires the share in excess of threshold as prescribed under regulation 3, regulation 3 में जो threshold दिया हुआ है उससे excess में अगर acquisition of shares होगा ना, in that case then the acquirer is required to make a public announcement of offer to the shareholder of the target company। अब देखिए रेगुलेशन 3 में क्या लिखा हुआ है, इट इज़ द सेम थिंग। ओके, सी दिस रेगुलेशन 3 प्रोवाइड्स द acquirer टू गिव एन ओपन ऑफर टू शेयर होल्डर ऑन द एक्विजिशन ऑफ शेयर्स और वोटिंग राइट्स, दैट मीन्स शेयर्स या वोटिंग राइट कुछ भी, इंटाइटलिंग द acquirer अलॉन्ग विद द PAC विथ हिम टू एक्सरसाइज 25% और मोर वोटिंग राइट्स इन द टारगेट कंपनी। ये कंडीशन बिल्कुल सेम है फ्रॉम द ट्रिगर पॉइंट विच वी हैव रेड इन द प्रीवियस पेज। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है ना कि देखिए एक्विजिशन किस चीज़ का हो रहा है, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स हो रहा है या तो वोटिंग राइट हो रहा है, जिससे अक्वायरर इंटाइटल हो जा रहा है टू एक्सरसाइज 25% और मोर वोटिंग राइट्स। यहाँ पे शेयर्स नहीं है, इस कंडीशन में यहाँ पे शेयर्स नहीं है। आपको शेयर के एक्विजिशन करने से 25% से ज़्यादा का वोटिंग राइट मिल रहा हो या फिर वोटिंग राइट के एक्विजिशन करने से 25% या उससे ज़्यादा का वोटिंग राइट मिलना चाहिए, शेयर्स नहीं। ऐसा नहीं हो कि आप 25% से ज़्यादा शेयर अगर परचेज कर लिए तो फिर ये एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है जी। लिमिट जो एक्सीड होना चाहिए वहाँ पे वोटिंग राइट वर्ड यूज़ किया है सिर्फ। ओके, सो इधर यू अक्वायर शेयर्स और वोटिंग राइट दैट इंटाइटल यू टू exercise 25% or more voting rights in the target company. In that case, this requirement for giving exit opportunity will get triggered. Now the next para says that any acquirer who holds shares between 25 to 75%, ये 75% जो है वो maximum non-public shareholding की limit है, together with PAC can acquire further 5% shares as creeping acquisition without giving an open offer to shareholder अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 75%। बट आपको याद आ रहा होगा कि हमने यहाँ क्रीपिंग एक्विजिशन लिमिट में पढ़ा था कि 5% से अगर ज़्यादा हो रहा हो तो उस केस में भी आपको सिमिलरली ओपन ऑफर देना है
जैसा कि रेगुलेशन 3 में देना है। बट एक बात यहाँ पे ध्यान देंगे, इस पैरा में और जो पैरा नेक्स्ट पेज में है उसमें एक डिफरेंस है। सी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ध्यान देंगे सेकंड लाइन में जहाँ मैं रेड मार्क कर रहा हूँ, वुड इंटाइटल हिम टू एक्सरसाइज मोर देन 5% ऑफ द वोटिंग राइट्स है यहाँ पे। इस केस में आपको पब्लिक अनाउंसमेंट करना है। एंड व्हाट इज रिटन हियर इज कैन अक्वायर फर्दर 5% शेयर्स, वोटिंग राइट नहीं है यहाँ। ओके आप अगर शेयर्स अक्वायर कर रहे हैं ना, इन दैट केस विदाउट गिविंग एन ओपन ऑफर टू शेयर होल्डर ऑफ द टारगेट कंपनी अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 75%, मीन्स आप 25 to 75% के बीच में शेयर होल्ड करते हो। सपोजिंगली मान लीजिए आप 65% करते हो होल्ड, ठीक है, तो आप फर्दर 5% शेयर अक्वायर कर सकते हो, बट मैक्सिमम शुड बी 75%। तो आप 65 करते हो होल्ड, आपने अगर 5% भी होल्ड किया तो इट इज़ विद इन योर लिमिट ऑफ 75%। बट आप अगर 73% ऑलरेडी होल्ड करते हो तो यू कांट अक्वायर फर्दर 5% शेयर, यू कैन अक्वायर ओनली 2%, बिकॉज जो मैक्सिमम लिमिट है वो 75% है। सो अगर आप शेयर अक्वायर कर रहे हैं, फर्दर शेयर अगर अक्वायर कर रहे हैं ना, इस केस में यू डोंट नीड टू गिव ओपन ऑफर टू द टारगेट कंपनी। बट अगर क्रिपिंग एक्विजिशन लिमिट विच वी हैव सीन इन द प्रीवियस पेज, वहाँ पे 5% वोटिंग राइट का बात किया हुआ था, तो आपको देना पड़ेगा ओपन ऑफर टू द पब्लिक शेयर होल्डर, वो 26% वाला लिमिट लगाकर। फर्दर इट शेज दैट द क्वांटम ऑफ एक्विजिशन एडिशनल वोटिंग राइट शैल बी कैलकुलेटेड आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग, मीन्स ये जो 5% एडिशनल का जो रिक्वायरमेंट है ना, इसको कैलकुलेट करने में इन सब बातों का ध्यान रखना है। सी कोई नेटिंग ऑफ नहीं करना है आपको, नो नेटिंग ऑफ अलाउड फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द क्वांटम ऑफ एक्विजिशन ऑफ एडिशनल वोटिंग राइट्स, ठीक है, ये शेयर्स के लिए नहीं है, वोटिंग राइट के लिए है। द ग्रॉस एक्विजिशन विदाउट कंसिडरिंग द डिस्पोजल ऑफ शेयर्स और डायल्यूशन ऑफ वोटिंग राइट ओइंग टू फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स बाय द टारगेट कंपनी शैल बी टेकन इनटू अकाउंट, मीन्स आपको ग्रॉस एक्विजिशन देखना है, मीन्स बीच में अगर कोई डिस्पोजल ऑफ शेयर्स होता है या किसी भी तरह का डायल्यूशन ऑफ वोटिंग राइट्स हुआ है तो यू डोंट हैव टू कंसिडर दैट, राइट। एंड द नेक्स्ट वन इज इंक्रीमेंटल वोटिंग राइट्स इन केस ऑफ फ्रेश इशू, that means when there is fresh issue of equity share, then how you will calculate the incremental voting right. See, it is as simple like you have to calculate your percentage voting right post allotment and pre allotment का difference, ठीक है। देखिए कहता है इन केस ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स बाय वे ऑफ इशू ऑफ न्यू शेयर्स बाय टारगेट कंपनी, द डिफरेंस बिटवीन द प्री अलॉटमेंट एंड पोस्ट अलॉटमेंट परसेंटेज वोटिंग राइट, मीन्स जो भी आपका परसेंटेज वोटिंग राइट पोस्ट अलॉटमेंट था और प्री अलॉटमेंट था, उस दोनों का डिफरेंस shall be regarded as quantum of additional acquisition, सिंपल। अगेन इसके बाद इस ब्रैकेट में दिया हुआ है कि ये जो क्रिपिंग एक्विजिशन हम लोगों ने देखा उसका लिमिट कैलकुलेशन करने का बेसिस क्या है, तो ये सेम बेसिस है कि हम ग्रॉस एक्विजिशन को लेंगे इग्नोरिंग एनी इंटरमीडिएट फॉल इन शेयर होल्डिंग और वोटिंग राइट्स वेदर ओइंग टू डिस्पोजल ऑफ शेयर्स या डायल्यूशन ऑफ वोटिंग राइट्स, इट इज सेम लाइक दिस वन, ओके, on account of fresh issue of shares by the target company. That means वो 5% of additional voting right वाला कंडीशन को जब कैलकुलेट करना है तो हमें ग्रॉस एक्विजिशन देखना है, हमें कोई भी डिस्पोजल ऑफ शेयर्स या कोई डायल्यूशन ऑफ वोटिंग राइट्स हुआ है उसे हमें कंसिडर नहीं करना है, ओके। बढ़ते आगे एंड द लास्ट पैर ऑफ दिस पेज, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स बाय एनी पर्सन सच दैट इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग ऑफ सच पर्सन एक्वायरिंग शेयर्स एक्सीड द स्टिपुलेटेड थ्रेशोल्ड्स shall be attracting the obligation to make an open offer for acquiring shares of the target company। क्या मतलब हुआ, अगर किसी पर्सन ने एक्वायर कर लिया ना शेयर कि उनका इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग भी एक्सीड कर जाए स्टिपुलेटेड थ्रेशोल्ड से, थ्रेशोल्ड मीन्स व्हाट, वो जो रेगुलेशन 3 में दिया हुआ है 25% वाला लिमिट, तो उनका भी ऑब्लिगेशन बनेगा टू मेक एन ओपन ऑफर फॉर एक्वायरिंग शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर देयर इज चेंज इन एग्रीगेट शेयर होल्डिंग विद पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट और नॉट। ये रेगुलेशन 3 में दिया हुआ है दैट कोई इंडिविजुअल भी है, उन्होंने भी अगर अक्वायर किया शेयर और ये वाला जो लिमिट है जो रेगुलेशन 3 में दिया हुआ है 3(1) में, वो अगर ट्रिगर कर जाता है, इन दैट केस ही ऑल्सो नीड टू गिव ओपन ऑफर टू द पब्लिक शेयर होल्डर। द नेक्स्ट गिवन इज एक्सेप्शन टू दिस कंडीशन, कहता है दिस शैल नॉट अप्लाई टू एक्विजिशन ऑफ शेयर्स या वोटिंग राइट ऑफ अ कंपनी बाय द प्रोमोटर्स और शेयर होल्डर्स इन कंट्रोल इन टर्म्स ऑफ प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 20 ऑफ सेबी ICDR रेगुलेशन, ठीक है। आप शेड्यूल 20 ऑफ ICDR रेगुलेशन रेफर कीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग कोई प्रमोटर या कोई शेयर होल्डर है जो कि एक्वायर कर रहे हैं शेयर, इन दैट केस उनको ओपन ऑफर देने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ओके। द नेक्स्ट टू डिस्कस हियर इज रेगुलेशन 4, ध्यान से देखेंगे। इट स्पेसिफाइज दैट इफ एनी एक्वायरर एक्वायर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल, यहाँ पे सिर्फ कंट्रोल का बात हो रहा है, ओके, वोटिंग राइट्स की बात नहीं हो रही, शेयर्स की बात नहीं हो रही है। अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक्वायर कर लिया कंट्रोल ओवर अ टारगेट कंपनी इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर देयर हैज़ बीन एनी एक्विजिशन ऑफ शेयर्स और नॉट, शेयर एक्वायर करके किया हो कंट्रोल एक्वायर या बिना शेयर एक्वायर किए ही कंट्रोल एक्वायर हो गया, मीन्स किसी भी प्रोविज़न से अगर उसके हाथ में कंट्रोल आ जाता है
then he has to give public announcement to acquire shares from shareholder of the target company. Regulation 4. I repeat, if any acquirer acquires directly or indirectly control over the target company, तो irrespective of fact कि वो शेयर से आया हो या नहीं आया हो, then he has to give public announcement to acquire share from shareholder of a target company. मतलब public announcement देना मतलब exit opportunity देना. Okay. अब आते हैं इनडायरेक्ट एक्विजिशन ऑफ शेयर्स और कंट्रोल. मीन्स आपने डायरेक्टली तो नहीं एक्वायर किया बट इनडायरेक्टली एक्वायर किया. क्या? या तो शेयर या तो कंट्रोल. The regulation 5 of this regulation talks about the concept of indirect acquisition of shares. Okay. See, it explains indirect acquisition as the acquisition of shares, voting right or control over any other company which would enable the acquirer of shares, voting right or control to exercise such percentage of voting right which would otherwise have triggered an open offer process over which would enable the acquirer to exercise control over a company. क्या बोला ये? See. इनडायरेक्ट एक्विजिशन का मतलब होता है एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, वोटिंग राइट और कंट्रोल विच इनेबल द एक्वायरर ऑफ शेयर टू एक्सरसाइज सच परसेंटेज ऑफ वोटिंग राइट विच वुड अदरवाइज हैव ट्रिगर्ड एन ओपन ऑफर प्रोसेस ओवर विच वुड इनेबल acquirer to exercise control over a company. This simply means indirectly आप इतना शेयर, वोटिंग राइट या कंट्रोल एक्वायर कर लेते हैं ना जिसके कारण ओपन ऑफर की रिक्वायरमेंट ट्रिगर्ड हो जाती है. दैट मीन्स वो 25% वाला लिमिट. ओके. रेगुलेशन 3 में अब देखिए कुछ इनडायरेक्ट एक्विजिशन ऐसे है जिसे हम लोग डीम डायरेक्ट एक्विजिशन मानते हैं. इफ सच इनडायरेक्ट एक्विजिशन सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस. द फर्स्ट कंडीशन इज व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ net asset value of target company as a percentage of consolidated net asset value of the entity or business being acquired exceeds 80%. This means target company की जो net asset है ना as compared to the net asset of consolidated entity or business which you are acquiring, it is exceeding 80%. Okay, the proportionate net asset value of the target company as a percentage of the consolidated net asset value of the entity or business being acquired means total जितने बिजनेस आप acquire कर रहे हैं या आप जिस बिजनेस को acquire कर रहे हैं उसका अगर हम consolidated देखें मीन्स इंक्लूडिंग ऑल इट्स सब्सिडरी एसोसिएट्स एंड ऑल, तो टारगेट कंपनी की जो नेट एसेट वैल्यू है उसके जो प्रोपोर्शन हो रहा है दैट इज एक्सीडिंग 80%. Okay, so first was the condition pertaining to net asset value. The next is proportionate sales turnover exceeds 80%, and the third one is market cap of target company as a percentage of enterprise value for the entity being acquired exceeds 80%. ये enterprise value का definition हम लोगों ने cover किया था. And the next is the deemed direct acquisition has to follow the same mandatory open offer related requirement as a direct acquisition of shares, voting right or control. अगर ये तीनों रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हुई ना और आपका ये इनडायरेक्ट एक्विजिशन बन गया डीम डायरेक्ट एक्विजिशन, देन यू हैव टू फॉलो द सेम मैंडेटरी ओपन ऑफर रिलेटेड रिक्वायरमेंट जो रेगुलेशन 3 में दिया हुआ था, दैट यू हैव टू गिव ओपन ऑफर टू द पब्लिक शेयर होल्डर. द नेक्स्ट टॉपिक इज डीलिस्टिंग ऑफर एंड इट इज गवर्न्ड बाय रेगुलेशन 5A. ओपन ऑफर के कुछ केसेस में डीलिस्टिंग की सीन आती है. ओके, delisting in case of certain cases arising out of open offer, it is discussed below. So सबसे पहला है कि in the event acquirer makes a public announcement of an open offer for acquiring shares of a target company in terms of regulation 3, 4 और 5. हम लोगों ने देखा 3, 4, 5 में 3 में था क्या मैंडेटरी ऑफर में एक्विजिशन ऑफ शेयर्स था, रेगुलेशन 4 में एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल था एंड रेगुलेशन 5 में इनडायरेक्ट एक्विजिशन ऑफ शेयर्स और कंट्रोल. ओके, इस तीनों के वजह से जो आपको पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ता है फॉर ओपन ऑफर. ओके, सो कह रहा है कि अगर एक्वायरर को ऐसा ही पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ा एज गिवन इन 3, 4, 5, ही में डीलिस्ट द कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ डीलिस्टिंग regulation, but the acquirer shall have declared upfront his intention to show delist at the time of making the detailed public statement, and a subsequent declaration of delisting for the purpose of offer proposed to be made under subregulation 1 of 5A will not suffice. This para means that अगर रेगुलेशन 3, 4 या 5 किसी के भी अकॉर्डिंग एक्वायरर को पब्लिक अनाउंसमेंट देना पड़ा ना फॉर द पर्पस ऑफ ओपन ऑफर, तो उसके पास ऑप्शन है कि वो उस कंपनी को डिलिस्ट करा दे, टारगेट कंपनी को, इन अकॉर्डेंस विद द डिलिस्टिंग रेगुलेशन. बट इसके लिए एक्वायरर को पहले ही बताना पड़ेगा, डिक्लेयर अपफ्रंट करना होगा. दैट मीन्स एडवांस में बताना होगा कि मेरा इंटेंशन है कि मैं डिलिस्ट कराना चाहता हूँ एट द टाइम ऑफ मेकिंग द डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट. दैट मीन्स वो पब्लिक अनाउंसमेंट के टाइम. और कहते हैं अगर कोई सब्सिक्वेंट डिक्लेरेशन देते हैं ना कि मैं डिलिस्टिंग कराना चाहता हूँ, तो उस केस में वो सफिशियंट नहीं होगा. मीन्स आपको पहले बताना है, बाद में नहीं. आई वॉन्ट टू डिलिस्ट दिस, यू नीड टू इन्फॉर्म इन एडवांस. अब देखिए, वेयर एन ऑफर मेड इज़ नॉट सक्सेसफुल, ये जो डिलिस्टिंग का ऑफर किया आपने, ये अगर सक्सेसफुल ना हो ड्यू टू दिस 3 रीज़न, आपको
प्रायर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर नहीं मिला एज पर रेगुलेशन 8 ऑफ डीलिस्टिंग रेगुलेशन, या फिर रेगुलेशन 17 के अकॉर्डिंग कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, या ऑन अकाउंट ऑफ एक्वायरर रिजेक्टिंग द डिस्कवर्ड प्राइस डिटरमाइंड बाय द बुक बिल्डिंग प्रोसेस। सी एज पर रेगुलेशन 16(1) ऑफ डीलिस्टिंग रेगुलेशन, ये जो प्राइस डिटरमाइन होता है ना, ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग होता है। इफ दिस प्राइस इज बीइंग रिजेक्टेड बाय द एक्वायरर, इन दैट केस ऑल्सो दिस ऑफर वुड नॉट बी सक्सेसफुल। ओके, तो अगर ये ऑफर सक्सेसफुल नहीं होता है तो एक्वायरर को अनाउंसमेंट करना पड़ेगा विद इन 2 वर्किंग डेज इन रिस्पेक्ट ऑफ सच फेल्योर इन ऑल द न्यूज़पेपर जहाँ पे डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट आया था। दैट मीन्स पब्लिक अनाउंसमेंट जिस न्यूज़पेपर में आया था ना, उसमें ही आपको विद इन 2 डेज ऑफ दैट फेल्योर ये भी अनाउंस करना है कि डीलिस्टिंग ऑफर भी नहीं हो पाया सक्सेसफुल, एंड शैल कंप्लाई विथ ऑल एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ दिस रेगुलेशन। Heading to the next page, and the next page telling that in the event of failure of the delisting offer made under sub regulation 1, ये जो delisting offer हुआ था ये अगर फेल कर जाए ड्यू टू दैट 3 conditions which we read in the previous page, तो ओपन ऑफर का ऑब्लिगेशन फुलफिल करना पड़ेगा एक्वायरर को इन द फॉलोइंग मैनर। एक्वायरर थ्रू द मैनेजर टू द ओपन ऑफर शैल विद इन 5 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट अंडर सब रेगुलेशन 2। ये सब रेगुलेशन 2 में कौन सा अनाउंसमेंट थे, जो कि विद इन 2 डेज ऑफ फेलियर हम लोगों ने किया था on that newspaper where public announcement has been came. Okay, तो उस announcement के within 5 working days acquirer through the manager to the open offer, उस open offer के जो manager है, he will file with the SEBI a draft of the letter of offer as specified in sub regulation 1 of regulation 16. Regulation 16 sub regulation 1 में जो draft letter of offer है that is to be submitted with the, that is to be filed with SEBI within 5 working days of the announcement done under sub regulation 2. Okay, and have to comply with all other applicable provision of this regulation. But there would be one change in the offer price. देखिए ऑफर प्राइस को इन्हेंस कर दिया जाएगा, दैट मीन्स इंक्रीज कर दिया जाएगा बाय एन अमाउंट इक्वल टू अ सम डिटरमाइंड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द पीरियड बिटवीन शेड्यूल्ड डेट ऑफ पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन एंड एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन टू द शेयर होल्डर। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ऑफर प्राइस जो होगा ना, जहाँ पे आपने डीलिस्टिंग का ऑफर दिया और वो कैंसिल हो गया, उसके बाद आप फिर ओपन ऑफर का ऑब्लिगेशन पूरा कर रहे हो लाइक दिस 2 पॉइंट्स। ओके, तो उस केस में ऑफर प्राइस को इंक्रीज कर दिया जाएगा कितने अमाउंट से, 10% पर एनम कैलकुलेट किया जाएगा बिटवीन द शेड्यूल्ड डेट ऑफ पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन टू द एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन टू द शेयर होल्डर। इस 2 डेट के बीच का जो पीरियड होगा ना, वी विल कैलकुलेट एट द रेट ऑफ 10% per annum at the offer price into 10% per annum into this period, उस अमाउंट से ऑफर प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। ओके, द नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेशन गिवन फॉर शेड्यूल डेट। यहाँ पे जो शेड्यूल डेट की बात की थी ना, शेड्यूल डेट ऑफ पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, सी कहता है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सब रेगुलेशन शेड्यूल डेट शैल बी डेट ऑन विच पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन आउट टू हैव बीन मेड टू द शेयर होल्डर्स। जिस दिन शेयर होल्डर्स को पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन करना था, आउट टू हैव बीन मेड in terms of the timelines in this regulation, इस regulation के timelines के according, that would be the schedule date for the payment of consideration. अब कहता है मेरा competing offer is made, that means आप जो ऑफर कर रहे हैं उसके लिए कोई और भी सेम ऑफर कर रहा है, लाइक अ कॉम्पिटिशन काइंड ऑफ थिंग। ओके, सिंपली जिस टारगेट कंपनी में आप सब्सटेंशियली एक्वायर करना चाह रहे हो शेयर, देयर आर सम अदर पार्टीज ऑल्सो हु आर ट्राइंग टू एक्वायर। तो उस केस में क्या करना है कि एक्वायरर जो है वो डीलिस्ट नहीं करा सकता है। जैसे हम लोगों ने डीलिस्टिंग का रिक्वायरमेंट देखा ना कि आप अगर प्रायर नोटिस दो तो आप डीलिस्ट करा सकते हो एज पर सेबी डीलिस्टिंग रेगुलेशन। ओके, अगर कॉम्पिटिंग ऑफर हो रहा है तो इन दैट केस एक्वायरर शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू डिलिस्ट द कंपनी, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। एंड द एक्वायरर शैल नॉट बी लायबल टू पे इंटरेस्ट टू शेयर होल्डर ऑन अकाउंट ऑफ डिले ड्यू टू द कंपीटिंग ऑफर। इस कंपीटिंग ऑफर की वजह से कुछ भी डिले हुआ ना इन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन टू द शेयर होल्डर, तो एक्वायरर को इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करनी है। इस केस में लायबिलिटी एक्वायरर का नहीं बनता है टू पे द इंटरेस्ट। And the third point is the acquirer shall comply with all the applicable provision of these regulation and make an announcement in this regard within 2 working days from the date of public announcement made in all the newspaper in which the detailed public statement was made. कहता है competing offer अगर हो रहा है तो उस केस में acquirer को comply करना है सारे applicable provision इस रेगुलेशन के, और अनाउंसमेंट करना है दैट competing offer भी हो रहा है within 2 working days from the date of public announcement in all the न्यूज़पेपर जहाँ पे पब्लिक स्टेटमेंट दिया गया था। इसके बाद है शेयर होल्डर्स हु हैव टेंडर्ड शेयर्स इन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर। सी, एक बार ऑफर जब वो जो ओपन ऑफर होता है ना फॉर द पर्पस ऑफ एग्जिट अपॉर्चुनिटी, तो उस केस में आपको अपना शेयर को टेंडर करना पड़ता है। दैट मीन्स अ सबमिट काइंड ऑफ थिंग कि यस आई वांट टू सेल माय शेयर।
तो अगर जिस शेयर होल्डर ने टेंडर कर दिया है शेयर इन द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर शैल बी एंटाइटल्ड टू विदड्रॉ सच शेयर टेंडर्ड। मीन्स एक बार आपने कहा कि ठीक है मैं सेल करूँगा आफ्टर एक्सेप्टिंग द ऑफर, आप उस ऑफर को विदड्रॉ कर सकते हैं विद इन 10 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द अनाउंसमेंट। सिमिलरली शेयर होल्डर हु हैव नॉट टेंडर्ड देयर शेयर्स ना, जो अब तक अग्री नहीं हुए हैं, जिन्होंने अपने शेयर को टेंडर नहीं किया है इन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर शैल बी इंटाइटल्ड टू टेंडर देयर शेयर्स इन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर मेड अंडर दिस रेगुलेशन। मीन्स जो सिंपली जो टेंडर नहीं किए है ना, वो इंटाइटल है टू टेंडर देयर शेयर्स इन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर मेड अंडर दिस रेगुलेशन। ऑफर को एक्सेप्ट करके वो अपने शेयर्स को टेंडर कर सकते हैं। ओके, और जिन्होंने ऑलरेडी टेंडर कर लिया है उनको विड्रॉ करने के लिए टाइम लिमिट है 10 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हेडिंग इज टू इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ वॉलेंट्री ऑफर। जो मैंने बोला था ना पहले कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जैसे रेगुलेशन 3 में ट्रिगर है, राइट, तो वो ट्रिगर ना भी टच करे तो आप अपने मन से भी ऑफर कर सकते हैं। So voluntary offer means open offer given by the acquirer voluntarily without triggering the mandatory open offer obligation as envisaged under this regulation। कहता है कि ये जो मैंडेटरी ओपन ऑफर है ना रेगुलेशन 3 में, इसका ट्रिगर बिना टच किए इफ़ यू वांट टू वॉलंटरली गिव द ओपन ऑफर दैट वुड बी कॉल्ड एज अ वॉलंटरी ऑफर। Now voluntary offers are an important means for substantial shareholder to consolidate their stake and therefore recognize the need to introduce a specific framework for such open offers. Further, Regulation 6 talks about the threshold and conditions for making the voluntary open offer, which are detailed below. The first condition is prior holding of at least 25% shares। ठीक है, 25% shares है, voting rights नहीं है। And shareholding of the acquirer and person acting in concert post completion of the open offer। This means that an acquirer who together with PAC hold shares or voting rights in a target company entitling them to exercise 25% or more but less than maximum permissible non-public shareholding। ओके, सी कहता है कि एक एक्वायरर है जो कि होल्ड करता है शेयर्स या वोटिंग राइट इन अ टारगेट कंपनी इंटाइटलिंग देम टू एक्सरसाइज 25% और मोर बट लेस देन मैक्सिमम परमिसिबल नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग। मीन्स देखिए 25% और मोर and maximum 75% because 75% is the maximum permissible non-public shareholding। He shall be entitled to voluntarily make public announcement of an open offer for acquiring shares in accordance with this regulation, subject to their aggregate shareholding after completion of open offer not exceeding the maximum permissible non-public shareholding। मीन्स उनका जो 25% से शेयर होल्डिंग ज़्यादा है ना, ये ओपन ऑफर देने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि 75% को क्रॉस कर जाए, राइट। The next para talks about the case where you are not eligible to make this voluntary offer। सी कहता है कि एक एक्वायरर अगर PAC के साथ अक्वायर किया हो शेयर ऑफ टारगेट कंपनी इन प्रीसीडिंग 52 वीक्स, ओके, विदाउट अट्रैक्टिंग द ऑब्लिगेशन टू मेक पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ एन ओपन ऑफर। सी दिस बेसिकली मीन्स टू से दैट ये जो ऐसा हो रहा है ना दैट आपका ऑब्लिगेशन नहीं है फिर भी आप पब्लिक अनाउंसमेंट कर रहे हो, तो ऐसा अगर 52 वीक्स में हुआ है, प्रीसीडिंग 52 वीक्स में अगर ऐसा हुआ है कि आपका ऑब्लिगेशन नहीं बनता है और स्टिल आपने वॉलंटरी ऑफर नहीं किया है, सो इन दैट केस he shall not be eligible to voluntarily make a public announcement of an open offer for acquiring shares under this regulation। See, इस प्रोविज़न का एक्चुअली इंटेंट ये है ना, देखिए कहता है कि जब एक एक्वायरर को उन्होंने एक्वायर किया था शेयर इन प्रीसीडिंग 52 वीक्स जबकि ये ऑब्लिगेशन अट्रैक्ट नहीं हुआ था, तो उसको पब्लिक अनाउंसमेंट उस टाइम मीन्स पहले ही आपको अगर वॉलंटरी ऑफर करना था तो आपको उस टाइम ही कर देना चाहिए था, राइट। अगर 52 वीक्स प्रीसीडिंग में ऐसा सीन आया है दैट यू आर नॉट अट्रैक्टिंग द ऑब्लिगेशन टू मेक पब्लिक अनाउंसमेंट, सो इन दैट केस नाउ ऑल्सो यू आर नॉट एलिजिबल टू वॉलंटरी मेक अ पब्लिक अनाउंसमेंट फॉर द पर्पस ऑफ दिस ओपन ऑफर। नाउ द प्रोहिबिशन ऑन द एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ड्यूरिंग द ऑफर पीरियड। This regulation prohibits the acquirer who has made voluntary open offer from further acquiring the shares during the offer period otherwise than under open offer। It is telling that आप acquirer हो और आपने voluntary open offer किया है तो आप acquire नहीं कर सकते shares का during the offer period। हाँ, आप तभी acquire कर सकते हैं जब आप उस open offer के according कर रहे हो, otherwise than under the open offer, that means it is exception to this rule। So this was the prohibition on acquisition of shares। Now let's see the restriction। Okay, prohibition means होता है that completely banned and restriction means subject to condition। तो कहता है acquirer and PAC with him who have made a public announcement under this regulation to acquire shares of a target company shall not be entitled to acquire any shares of the target company for a period of 6 months after completion of open offer except pursuant to another voluntary open offer।
दिस मीन टू से दैट एक्वायरर एंड पीएसी अगर उन्होंने पब्लिक अनाउंसमेंट किया है फॉर एक्वायरिंग शेयर्स ऑफ अ टारगेट कंपनी, ओके, तो वो अगले 6 मंथ तक आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ओपन ऑफर एक्वायर नहीं कर सकते शेयर्स ऑफ द टारगेट कंपनी एक्सेप्ट इफ दे आर एक्वायरिंग परसुएंट टू अनदर वॉलंटरी ओपन ऑफर। अगर वो कोई और वॉलंटरी ओपन ऑफर के अकॉर्डिंग अगर वो अक्वायर कर रहे होंगे दैट इज़ फाइन, अदरवाइज वो till 6 months of completion of the open offer they can't acquire the shares. Further, the proviso says that such restriction shall not prohibit the acquirer from making a competing offer upon any other person making an open offer for acquiring shares of a target company. See, ये जिन पर रिस्ट्रिक्शन लगा है ना फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग द शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी, वो मीन्स उनको अगर कोई कॉम्पिटिंग ऑफर करना होगा ना अपॉन एनी अदर पर्सन मेकिंग एन ओपन ऑफर फॉर एक्वायरिंग शेयर ऑफ टारगेट कंपनी, मीन्स किसी और टारगेट कंपनी को एक्वायर करने के लिए कोई कॉम्पिटिंग ऑफर करना होगा तो वो बिल्कुल कर सकते हैं, ओके। दिस restriction is not on competing offer. Next, the shares acquired through bonus issue or stock split shall not be considered for purpose of the disentitlement set out in this regulation. This means that if you have received some shares out of the bonus issue or stock splits, तो ये जो restriction है ना कि you are not entitled to acquire any shares, तो आपको जो bonus issue से या फिर stock split से जो share मिलेगा that would not qualify as that you have acquired the share. उसे ये नहीं माना जाएगा that आपने share का acquisition किया है, ठीक है, तो वो इसके अंडर कवर नहीं होता है दैट यू आर नॉट इंटाइटल्ड टू अक्वायर एनी शेयर। दैट मीन्स आपको अगर बोनस इशू से मिल रहा है या स्टॉक स्प्लिट से मिल रहा है तो दैट इज़ फाइन। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज विलफुल डिफॉल्टर। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस रेगुलेशन, नो पर्सन हु इज अ विलफुल डिफॉल्टर शैल मेक अ पब्लिक अनाउंसमेंट of an open offer for acquiring shares or enter into any transaction that would attract the obligation to make a public announcement. देखिए, इट सेज दैट कोई भी पर्सन जो कि विलफुल डिफॉल्टर है, विलफुल डिफॉल्टर बेसिकली मीन्स अ पर्सन हु हैव नॉट पेड एनी लोन काइंड ऑफ थिंग डिस्पाइट ऑफ हिज बीइंग एबिलिटी टू पे। दैट मीन्स वो पे कर सकते थे बट उन्होंने पे नहीं किया, ओके, दिस इज कॉल्ड विलफुल डिफॉल्टर। तो जो पर्सन विलफुल डिफॉल्टर है ना वो पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं कर सकते फॉर ओपन ऑफर ऑफ एक्वायरिंग शेयर्स, या वो कोई ऐसे ट्रांजेक्शन में भी वो एंटर नहीं कर सकते जो कि उनका ऑब्लिगेशन बने टू मेक अ पब्लिक अनाउंसमेंट। अब ऐसा कौन सा ट्रांजैक्शन है जिसमें एंटर करने पे अपना ऑब्लिगेशन बन जाता है, दैट रेगुलेशन 3 वाला लिमिट, ओके, दैट यू कांट एक्वायर दैट मच शेयर्स जो कि आपको 25% से ज़्यादा वोटिंग राइट्स का एंटाइटलमेंट दे दे, ठीक है। However, this regulation shall not prohibit the willful defaulter from making a competing offer in accordance with regulation 20 of this regulation upon any other person making same बात है। जैसे यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा था ना कि कॉम्पिटिंग ऑफर के लिए मीन्स एक्सेप्शन था, सेम वे विलफुल डिफॉल्टर जो है वो कॉम्पिटिंग ऑफर कर सकते हैं, ही कैन ईजली मेक अ कॉम्पिटिंग ऑफर। वी हैव सीन दिस इन रिस्ट्रिक्शन ऑफ द एक्विजिशन ऑफ शेयर्स दैट कॉम्पिटिंग ऑफर के लिए एक्सेप्शन थे, यहाँ पे देखेंगे, ओके, तो सेम एक्सेप्शन इज हियर ऑल्सो, फाइन। इसके बाद टॉपिक है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। सी again, it is notwithstanding anything contained in this regulation, no person who is fugitive economic offender shall make a public announcement or enter into any transaction either directly or indirectly for acquiring any shares or voting right or control of a target company. तो इसमें ये फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर क्या होते हैं? ये वो पर्सन होते हैं जिन्होंने कुछ पैसे चोरी की और भाग गए, ओके, लाइक विजय माल्या। तो ये कहता है कि वो पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं कर सकते ऑफ एन ओपन ऑफर और मेक अ कॉम्पिटिंग ऑफर। देखिए, ये लोग कॉम्पिटिंग ऑफर भी नहीं कर सकते, कौन? फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर फॉर एक्वायरिंग शेयर्स और एंटर इनटू एनी ट्रांजैक्शन इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर एक्वायरिंग एनी शेयर्स और वोटिंग राइट और कंट्रोल ऑफ अ टारगेट कंपनी, ओके। So coming to the next heading now, conditional offer. An offer in which the acquirer has stipulated a minimum level of acceptance is known as conditional offer. ये जो acquirer है ना, उन्होंने minimum level of acceptance insert किया है in the offer, and that kind of offer is called conditional offer. So let's see now what is this minimum level of acceptance condition. देखिए, कहता है कि ये minimum level of acceptance जो है ना, it implies minimum number of shares which the acquirer desires under the said conditional offer. ये जो ऑफ़र दिया जा रहा है, ये जो एक्वायरर ऑफ़र दे रहे हैं टू पब्लिक शेयर होल्डर दैट यू टेंडर योर शेयर एंड आई विल परचेज, ठीक है। तो इसमें जो एक्वायरर है ही विल पुट द कंडीशन कि मिनिमम नंबर ऑफ इतना शेयर होगा जो कि हम आपसे एक्सेप्ट करेंगे, राइट। अब कहता है इफ़ द नंबर ऑफ शेयर्स वैलिडली टेंडर्ड इन द कंडीशनल ऑफर आर लेस देन द मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस स्टिपुलेटेड बाय द एक्वायरर देन द एक्वायरर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट एनी शेयर्स अंडर द ऑफर। मतलब है कि जितना शेयर टेंडर्ड किया गया है ना, वो अगर मिनिमम
एक्सेप्टेंस लेवल से कम हो तो अक्वायरर इज़ नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट एनी शेयर्स अंडर द ऑफर। इन दैट केस अक्वायरर के पास कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है या कुछ कंपल्सन नहीं है कि वो शेयर्स को खरीदेगा ही। कहते हैं इन अ कंडीशनल ऑफर इफ द मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट रीच्ड ना द अक्वायरर शैल नॉट अक्वायर एनी शेयर्स इन द टारगेट कंपनी अंडर द ओपन ऑफर और द शेयर परचेज एग्रीमेंट विच हैज़ ट्रिगर्ड द ओपन ऑफर। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जो मिनिमम नंबर ऑफ शेयर अक्वायरर ने स्टिपुलेट किया है वो अगर टच नहीं करता है तो फिर दैट अक्वायरर विल नॉट परचेज एनी शेयर ऑफ टारगेट कंपनी अंडर द ओपन ऑफर और एनी शेयर परचेज एग्रीमेंट। सो ये था कंडीशनल ऑफर एंड नाउ वी आर मूविंग टू द मिनिमम ऑफर साइज। सी द मिनिमम ऑफर साइज फॉर एन ओपन ऑफर इज एज अंडर। सी रेगुलेशन 4 और रेगुलेशन 5 के अंदर द मिनिमम ऑफर साइज विल बी 26% ऑफ द इमर्जिंग शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एज ऑन 10th वर्किंग डे फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द टेंडरिंग पीरियड। टेंडरिंग पीरियड के क्लोज होने के जो 10th डे होगा ना उस टाइम पे जो इमर्जिंग शेयर कैपिटल होगा मीन्स जितना शेयर टेंडर्ड किया गया राइट उसका 26% तो मिनिमम परचेज करना ही है। दैट वुड बी मिनिमम ऑफर साइज। सो रेगुलेशन 4 एंड 5 में द मिनिमम ओपन ऑफर साइज इज 26% ऑफ द इमर्जिंग शेयर कैपिटल एज ऑन 10th वर्किंग डे फ्रॉम द क्लोजर ऑफ टेंडरिंग पीरियड। अब इसके अलावा एक और कंडीशन है, ये कहता है कि अगर उस ओपन ऑफर के कारण पोस्ट ऑफर शेयर होल्डिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स अदर देन एक्वायरर एंड पीएसी प्रमोटर्स मीन्स एक्वायरर और पीएसी के अलावा जो पब्लिक शेयर होल्डर है ना उसका शेयर होल्डिंग अगर फॉल्स बिलो मिनिमम परमिसिबल पब्लिक शेयर होल्डिंग रिक्वायरमेंट। देखिए एक मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग रिक्वायरमेंट होता है दैट पब्लिक का इतना शेयर होना ही चाहिए। उस लिमिट के अगर नीचे चले जाए शेयर होल्डिंग उन लोग का जो कि एक्वायरर नहीं है और पीएसी नहीं है। सी बेसिकली ओपन ऑफर में क्या होगा एक्वायरर और पीएसी जो होंगे वो पब्लिक शेयर होल्डर्स का शेयर्स को परचेज करेंगे। तो ये परचेज करने से अगर उन लोग का शेयर होल्डिंग मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के रिक्वायरमेंट से नीचे चले आए उस केस में क्या होगा। सो इन दैट केस द एक्वायरर्स एंड पीएसी मस्ट टेक नेसेसरी स्टेप टू रिड्यूस देयर होल्डिंग within 1 year in such manner as specified by SEBI to achieve the minimum public shareholding norms। देखिए जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है वो मिनिमम स्पेसिफाइड लिमिट से कम हो गया है और पीएसी और एक्वायरर का ज़्यादा हो गया है लिमिट राइट। तो एक साल के अंदर उन लोगों को अपना शेयर होल्डिंग कम करना पड़ेगा सो दैट ये मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स का कंप्लायंस हो सके। नाउ द नेक्स्ट मिनिमम ऑफर साइज इन केस ऑफ रेगुलेशन 6। Here the limit is 10% of the total share of company and the post offer shareholding मतलब शेयर ये ऑफ़र के बाद जो एक्वायरर और पीएसी का शेयर होल्डिंग होगा ना वो नहीं एक्सीड करना चाहिए फ्रॉम मैक्सिमम परमिसिबल नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग मीन्स ये नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग की जो मैक्सिमम लिमिट है उससे ज़्यादा ना हो जाए शेयर होल्डिंग ऑफ एक्वायरर एंड पीएसी। ओके so this was the minimum size of offer and as per regulation 4 or 5 it was 26% of emerging share capital as on 10th working day from closure of tendering period and in regulation 6 it is 10%। the next topic to be covered is public announcement and this public announcement means ये जो हम लोग एग्जिट अपॉर्चुनिटी देते थे उसके लिए पब्लिक अनाउंसमेंट करना। ओके एग्जिट अपॉर्चुनिटी टू पब्लिक शेयर होल्डर्स। कहता है SAST रेगुलेशन प्रोवाइड दैट वेन एवर एक्वायरर एक्वायर्स द शेयर्स और वोटिंग राइट ऑफ द टारगेट कंपनी इन एक्सेस ऑफ द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर द रेगुलेशन वो जो रेगुलेशन 3 वगैरह में मैंशनड है। ओके तो एक्वायरर इज रिक्वायर्ड टू गिव अ पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ एन ओपन ऑफर टू द शेयर होल्डर ऑफ द टारगेट कंपनी। एक्वायरर को जब वो ये लिमिट जो प्रिस्क्राइब्ड है उसको क्रॉस करेगा फॉर द पर्पज ऑफ एक्वायरिंग द शेयर्स और वोटिंग राइट तो एक्वायरर को देना होगा पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ एन ओपन ऑफर टू द शेयर होल्डर ऑफ द टारगेट कंपनी। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ एन ओपन ऑफर द एक्वायरर इज रिक्वायर्ड टू गिव पब्लिक अनाउंसमेंट एंड पब्लिश डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट। जब वो पब्लिक अनाउंसमेंट कर रहा होगा ना इन दैट टाइम ही ऑल्सो नीड टू फर्निश द पब्लिक डिटेल्ड स्टेटमेंट। द रेगुलेशन है प्रिस्क्राइब सेपरेट टाइमलाइंस फॉर पब्लिक अनाउंसमेंट एज वेल एज डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट। ये जो पब्लिक अनाउंसमेंट और डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट है इसकी डिफरेंट टाइमलाइन है। ओके सो पहला टाइमिंग है पब्लिक अनाउंसमेंट कि आपको पब्लिक अनाउंसमेंट कब करना है और कहाँ करना है। द फर्स्ट इट इज टेलिंग दैट पब्लिक अनाउंसमेंट शैल बी सेंड टू ऑल द स्टॉक एक्सचेंज वेयर द शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी आर लिस्टेड। हर उस स्टॉक एक्सचेंज में जहाँ पे उस टारगेट कंपनी का शेयर्स लिस्टेड होगा पब्लिक अनाउंसमेंट नीड टू बी सेंड टू ऑल दो स्टॉक एक्सचेंज। After that, copy of the same shall be sent to the SEBI and to the target company at its registered office within 1 working day of the date of public announcement। उस पब्लिक अनाउंसमेंट के होने के एक दिन के अंदर एक कॉपी जाना है उसका SEBI के पास और टारगेट कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में।
ठीक है. The time within which the public announcement is required to be made to stock exchange under different circumstances is tabulated below. अब public announcement कब कब करना है to the different stock exchanges we will see in this table. In this column particular of compliances has been given and the time is given here. See, under regulation 13(1), when agreement to acquire shares or voting right or control over the target company entered, so on the same day of entering into agreement to acquire share, voting right, control over the target company, that means you have to make a public announcement of that agreement on the same day of entering the agreement. Let's see the next thing. Market purchase of shares. Market purchase of shares का announcement कब करना है? Prior to the placement of purchase order with the stock broker to acquire the shares. उस शेयर को परचेज करने के लिए आप जब ऑर्डर प्लेस कर रहे होंगे ना, उससे पहले आपको पब्लिक अनाउंसमेंट करना है. इफ़ यू आर एक्वायरिंग शेयर्स बाय वे ऑफ कन्वर्शन ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटी और कन्वर्शन ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट on the same day when the option to convert such security into the share of target company is exercised, जिस दिन आपने वो ऑप्शन को एक्सरसाइज किया होगा that I want to convert my this convertible security into equity, आपको सेम डे पब्लिक अनाउंसमेंट करना है. Acquiring shares, voting rights or control pursuant to conversion of convertible security with fixed date of conversion, और यहाँ पे था without a fixed date. ओके, तो विदाउट अ फिक्स डेट के केस में ऑन द सेम डे करना है, बट विद अ फिक्स डेट ऑफ कन्वर्शन यू हैव टू डू ऑन द सेकेंड वर्किंग डे preceding the scheduled date of conversion of such security into shares of the target company. That means second working day preceding the scheduled date of conversion. जिस दिन conversion का scheduled date था ना, because in this case the date of conversion is fixed, right? तो जो scheduled date of conversion था उसके 2 दिन पहले on the second working day preceding the scheduled date of conversion. In case of disinvestment, on the date of execution of agreement for acquisition of shares or voting right, मतलब जिस दिन agreement execute हुआ था उस दिन आपको public announcement करना है. Next is the case of indirect acquisition of share or voting right where none of the parameters mentioned in regulation 5(2) are met. At any time within 4 working days of the following dates, whichever is earlier, within 4 working days of the following dates, when the primary acquisition is contracted and date on which the intention or decision to make the primary acquisition is announced in the public domain. इस दोनों डेट का अर्लियर लेना है और उसके विद इन 4 वर्किंग डेज यू नीड टू डू द पब्लिक अनाउंसमेंट. एंड द नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट एक्विजिशन ऑफ शेयर्स और कंट्रोल ऑफ टारगेट वेयर द पैरामीटर्स मेंशनड इन 5(2) आर मेट. यहाँ पे विद इन 4 वर्किंग डेज की कंडीशन नहीं है, बाकी ये दोनों सेम है. इसका हमें विच एवर इज अर्लियर लेना है. ओके, व्हेन द प्राइमरी एक्विजिशन इज कॉन्ट्रैक्टेड एंड डेट ऑन विच द इंटेंशन और डिसीजन टू मेक द प्राइमरी एक्विजिशन इज अनाउंस्ड. नेक्स्ट इज एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, वोटिंग राइट और कंट्रोल ओवर द टारगेट कंपनी पर्सुएंट टू एन. अगर प्रेफरेंशियल इशू से आप अक्वायर कर रहे हो शेयर्स, तो ऑन द डेट व्हेन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द टारगेट कंपनी ऑथराइजेज सच प्रेफरेंशियल इशू यू हैव टू मेक द पब्लिक अनाउंसमेंट. एन इंक्रीज इन वोटिंग राइट कॉन्सिक्वेंशियल टू अ बायबैक नॉट क्वालिफाइंग फॉर एग्जाम्पशन अंडर रेगुलेशन 10 नॉट लेटर देन 90th डे, मतलब कि आपको विद इन 90 डे फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द बायबैक ऑफर बाय द टारगेट कंपनी यू हैव टू डू द public announcement. The last of this page is acquisition of shares, voting right, control over the target company, where the specific date on which title to such shares or control is acquired is beyond the control of acquirer. में जो acquirer है वो श्योर नहीं है कि किस डेट को जिस शेयर को वो acquire कर रहे हैं उसका टाइटल उनको ट्रांसफर होगा. So not later than 2 working days from the date of receipt of such intimation of having acquired such title. जब उनको ये पता चल जाए कि टाइटल ट्रांसफ़र हो गया है तो उसके विद इन 2 days पब्लिक अनाउंसमेंट करना है. Last 2 requirements are here. Pursuant to regulation 3 and 4 for a proposed acquisition of shares or voting right in or control over the target company through a combination of this and this. 2 of the modes given in regulation 13 to acquire the shares in regulation 3 and 4. Okay. So अगर आप उस मोड से शेयर्स को अक्वायर कर रहे हो तो इन दैट केस ऑन द डेट ऑफ फर्स्ट सच एक्विजिशन provided the acquirer disclosure in the public announcement the details of the proposed subsequent acquisition. Means if you are proposed to acquire the shares or voting right through a combination of the method specified in regulation 13, so जिस दिन आपने first acquisition किया you have to make a public announcement and provided कि acquirer को disclose करना पड़ेगा कि further वो कब acquire करने वाले हैं. And the last one is voluntary offer on the same day when acquirer decide to make voluntary offer. जिस दिन आपने decide किया that I will go for the voluntary offer, you should need to make public announcement on the same day. So these were the timelines for public announcement. Now let's see what are the timelines for detailed public statement.
It says that Regulation 13 of this regulation provides for detailed public statement shall be published by the acquirer through the manager to the open offer not later than 5 working days of the public announcement. That means public announcement के within 5 days आपको detailed public statement publish कर देना है. Further, it is telling that in case of indirect acquisition where none of the conditions specified in Regulation 5(2) are satisfied, the detailed public statement shall be published not later than 5 working days of the completion of primary acquisition of shares or voting rights in or control over the company or entity holding shares or voting right or control over the target company. This means to say where the case pertains to indirect acquisition and the conditions specified in Regulation 5(2) are not satisfied. Okay, none of the condition are satisfied. That means जो condition Regulation 5(2) में दिया हुआ है वो satisfy नहीं हुआ है, तो आपको ये डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट्स पब्लिश करना है नॉट लेटर देन 5 वर्किंग डेज. दैट मीन्स विद इन 5 वर्किंग डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्राइमरी एक्विजिशन ऑफ शेयर्स और वोटिंग राइट और कंट्रोल ओवर द कंपनी और एंटिटी होल्डिंग शेयर्स और वोटिंग राइट और कंट्रोल ओवर द टारगेट कंपनी. मीन्स प्राइमरी एक्विजिशन के कंप्लीट होने के 5 दिन के अंदर आपको ये डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट फाइल करना है. Further, there are few more requirements given that relates to public announcement and detailed public statement. See, Regulation 14 of this regulation provides the requirements relating to publication of public announcement and detailed public statement which are tabulated below. देखिए, सबसे पहला कहता है कि public announcement shall be sent to all stock exchanges and same information disseminate to public on the same day. So this is required compliance and this is the timeline given for the same. सो पहला कहता है कि जो पब्लिक अनाउंसमेंट होगा ना, यू नीड टू सेंड टू ऑल द स्टॉक एक्सचेंज और पब्लिक में भी उस इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करना पड़ेगा, मतलब स्प्रेड करना पड़ेगा यू कैन से. तो अब आपको ये कब तक करना है? ऑन द सेम डे ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट. देन कॉपी ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट शैल ऑल्सो बी सेंड टू द सेबी एंड टारगेट कंपनी एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस. ये हम लोगों ने पहले भी देखा था दैट दिस इज़ वन ऑफ द रिक्वायरमेंट कि आपको कॉपी ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट सेबी को सेंड करना पड़ता है एंड रजिस्टर्ड ऑफिस में सेंड करना होता है. एंड दिस शुड बी डन विद इन 1 वर्किंग डे ऑफ द डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट. पब्लिक अनाउंसमेंट होने के एक दिन के अंदर आपको कॉपी ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट सेबी और रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ टारगेट कंपनी को सेंड करना है. Okay, the next compliance requirement is detailed public statement pursuant to the public announcement shall be published in all edition of any one of English newspaper, one Hindi newspaper, regional language newspaper where the registered office of the target company is situated, and any one regional language newspaper at place of stock exchange where highest volume of trading in shares of the target company are recorded during the 60 trading days preceding the date of public announcement. This pertains to compliance related to publish of डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट. ये जो डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट को पब्लिश करना है ना, तो आप इसे कहाँ कहाँ पब्लिश करोगे? एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में, एक हिंदी न्यूज़पेपर में और एनी वन रीजनल लैंग्वेज न्यूज़पेपर जहाँ पे टारगेट कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है. प्लस आपको एक और रीजनल लैंग्वेज न्यूज़पेपर में आपको इसे पब्लिश करना है और वो प्लेस होगा of the stock exchange जहाँ पे highest volume of trading in shares हो of the target company recorded during the 60 trading days preceding the date of public announcement. See, simply you have to check that कितने stock exchange पे target company listed है. Okay, और उसके बाद आपको ये देखना है कि किस stock exchange में highest volume of trading is recorded during the 60 trading days public announcement के पहले preceding the public announcement. Okay, तो वो stock exchange का जो place होगा ना, वहाँ के रीजनल न्यूज़पेपर में भी आपको पब्लिश करना है डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट. और इसका टाइम लिमिट है विद इन 5 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट. ये पब्लिश हो जाना चाहिए, चाहे वो इंग्लिश न्यूज़पेपर में हो, हिंदी में हो या रीजनल पेपर में हो. ओके, सॉरी. ओके, एंड द लास्ट रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू दिस इज विद इन द पब्लिकेशन ऑफ सच डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट इन द न्यूज़पेपर. ये जो हम लोगों ने अभी पब्लिश किया न्यूज़पेपर में, अ कॉपी ऑफ द सेम शैल बी सेंड टू सेबी. ठीक है. All the stock exchange on which share of target company are listed and stock exchange shall forthwith disseminate such information to the public. Or target company at its registered office and target company shall forthwith circulate it to the members of its board immediately. क्या समझ में आता है इससे? That ये जो पब्लिक स्टेटमेंट जब पब्लिश हो गया ना, तो उसकी कॉपी को हम सेंड करेंगे सेबी में, सारे स्टॉक एक्सचेंज में, और वो स्टॉक एक्सचेंज फर्दर स्प्रेड करेगा उस इन्फॉर्मेशन को टू द पब्लिक और टारगेट कंपनी को रजिस्टर्ड ऑफिस में, एंड द टारगेट कंपनी सेल फोर्थली सर्कुलेटेड टू द मेंबर ऑफ बोर्ड. जब हम टारगेट कंपनी को सेंड करेंगे तो वो अपने बोर्ड मेंबर्स को सर्कुलेट कर देंगे वो इन्फॉर्मेशन, एंड दैट दिस शुड बी डन इमीडिएटली. नाउ द फर्दर स्टेटमेंट सेज दैट आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट, ये डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट जब पब्लिश हो गया तो अक्वायरर को
फाइल करना है सेबी के पास अ ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर विद इन 5 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द डेटेड पब्लिक स्टेटमेंट एंड दैट draft letter of offer will contain such information as may be specified along with non-refundable fees as prescribed by way of banker's check or demand draft payable in Mumbai in favor of SEBI. Means after publishing this detailed public statement, acquirer को SEBI के पास एक draft letter of offer फाइल करना है and that should be filed with non-refundable fees, okay, and payable in Mumbai होगा वो और in favor of SEBI होगा and that payment is to be made by banker's check or DD, that is demand draft. Now the next topic is offer price, but for now I am not proceeding with this and summing up this video as a part 1. Okay, we'll cover this part in part 2 of this video. Okay.